We have also seen the positivity rate of these states before taking decisions. I'll tell you that the weekly positivity rate in UP was only 0.24%. In Uttarakhand, it was 1.01%. In Punjab, it was 2%. Hello? Slowly. Figure slowly. Acha figure. In UP, the positivity rate was 0.24%. In Uttarakhand, the positivity rate was 1.01%. In Punjab, it was 2.1%. In Manipur, it was 1.1%. And Goa, it was something around 13% because of the newer party by the outsider in that state. So these are the positivity weekly rates which we have seen and produced by all of us. And we have taken the opinion of medical experts, the union health secretary, and other secretaries as I discussed with you. We have appointed health nodal officers at the district, state, and assembly constituency level, and in all polling states. And in view of COVID concerns, polling time has been increased by 1 hour to all in all 5 states, and the time will be notified when the notification will be issued of those particular states. In view of emphasis on non-contact based campaign during pandemic conditions, Commission has decided to double the free equitable time allotted to the recognized political parties on Doordarshan and AER during these elections. It is expected that all stakeholders, namely political parties, candidates, campaigners, voters, and authorities engaged in the election process shall be conscious of their prime duty towards public health, safety, and therefore shall abide by the general instructions and other norms of COVID appropriate behavior as mandated by the respective authorities prescribed. Further, political parties and candidates are advised to conduct their campaign as much as possible through digital, virtual media platforms, mobile-based mode instead of physical mode, ensuring strict compliance of COVID safety norms. And keeping it in mind, the expenditure limit of the candidates have already been increased from 28 to 40 lakh. A detailed guidelines are being issued and which will be given to all of you regarding the COVID guidelines 2022 as to how the political parties, how the election officials, how the EVM persons will be dealt with and will be dealing with the COVID appropriate behavior. But the main point I would like to share with you, the Commission has decided that no roadshow, padyatra, cycle, bike vehicle rally and procession shall be allowed till 15th January 2022. Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly. So up to 15th of January, because the situation is dynamic, it is not static. No road show, no padyatra, no cycle, bike or vehicle rally and any procession. Similarly, no physical rally of political parties or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15th January. Commission shall subsequently review the situation considering the situation of the pandemic and issue further instructions accordingly. So up to 15th of January, there is absolutely a moratorium of physical rally and physical road shows. Between 8 p.m. and 8 a.m., no rallies and public meetings. Similar like a campaign curfew that on any campaign day. That will continue. No nukkad sabhas will be allowed on public roads, roundabouts or public streets or corners. Fifth, no victory procession after the counting shall be allowed and not more than 2 persons shall be allowed to accompany the winning candidate or his or authorized representative to receive the certificate of election from returning officers. So we are reducing the physical contact, physical availability, and we are saying that more and more virtual and virtual rallies, virtual campaign should be done. However, physical rallies during the campaign period, if after considering the situation, which is very dynamic, and when permitted, after the decision of the Commission, shall be conducted subject to adherence to COVID-19 guidelines.
The maximum limit of persons allowed for indoor and outdoor rally meeting shall be as per existing directions of SDMAs. For these meetings, political parties shall distribute masks and sanitizer to persons attending and maintain COVID protocol at entry and exit point. Further rallies and meetings shall be allowed only in earmarked places and with prior permission of district administration. Door-to-door campaign, a maximum of 5 persons, including candidates, excluding security personnel, if any, shall be allowed to do door-to-door campaign. Each political party candidate shall have to furnish an undertaking in the application form under Suvidha that it shall abide by all the extant instructions, guidelines in this regard. So an undertaking will also be taken whenever any rally will be allowed. Later on, when we review the situation after 15th or something like that, only then again also these undertakings, COVID guidelines have to be strictly followed with each and every person who is involved in the campaign. Let me finish him it. After please that, finish. We'll take up your questions thereafter. Non-compliance of instruction. Anybody violating the instructions on COVID measures will be liable to proceed against as per the provisions of the Disaster Management Act, besides legal action under IPC and other legal provisions as applicable. And the prime responsibility will be resting with the CS and DO as mandated under the DM Act. And our guidelines specifically reiterate this legal position, and the guidelines will be given to each and every one of you. It is reiterated that in case of breach and disregard to the above guidelines, the Commission will not hesitate in cancelling the rallies or not allowing any further rallies by that party. So the COVID protocol is absolutely quite restrictive and quite strong basically that way, so that we can see that no physical rally will be done up to 15th of January. Media, I would like to come to the media now. Media has always been a friend of ECI and has well played a very significant and positive role in elections. And this time also, we implore them to help us reach out to all stakeholders regarding safety norms and higher voter participation. It is you only who communicate our message to the public. It is you only who motivates them to cast a vote. It is through you only that we send our messages to them. So you are our friend, and you are the person who can help us in achieving our goals. Social media has also become an important component of life, and Commission has been engaging with social media platforms since 2019, and a voluntary code of ethics had come into play, which will also be applicable. Commission has been engaging and requesting all political parties and candidates to ensure that their supporters do not indulge in hate speeches and fake news. A strict watch on social media posts is being kept to ensure election atmosphere is not vitiated in any manner. Any person or organization indulging in such malicious activity will face harsh consequences. Now I will come to the schedule of elections, I think which you are waiting, and that is something which is very important and a very most important thing. During this time, we have also seen and perused that how the elections were conducted in 2017, how they were conducted in 2012. In 2012, it was done, all the 5 states were done in 9 phases. In 2017, it was done in 8 phases. And now we are reducing it by 1 more phase, and all elections of 5 states will be conducted in 7 phases. I will give you the, I will read it and I will give. Total 7. Total 7. All the 5 states combined together will be completed in 7 phases. I will give you a detailed chart, then you can understand more. Should I start? Because for this you are waiting. That will not be complete without, starting this thing. And the first date of the issue of notification will be 14th January 2022, and which will start from Uttar Pradesh. This will be the first phase of Uttar Pradesh. The issue of notification is 14th January. Last date of nominations 21st January. Scrutiny of nominations 24th January.
Last date of withdrawal of candidature 27th January and date of poll 10th February 2022. This is the first phase. Now let us come to the second phase, which is a very important phase. In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in one phase, Uttarakhand in one phase, Goa in one phase. So Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Goa. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. And here the issue of notification will be 21st January. Last date of nominations 28th January. Scrutiny of nominations 29th January. And last date of withdrawal of candidature 31st January. And date of poll 14th February, that is Monday. Third phase, only Uttar Pradesh. That is issue of notification 25th January. Last date of nominations 1st February. Scrutiny of nominations 2nd February. Last date of withdrawal of candidature 4th February. And date of poll 20th February, that is Sunday. Uttar Pradesh fourth phase, issue of notification 27th January. Last date of nominations 3rd February. Scrutiny of nominations 4th February. Last date of withdrawal of candidature 7th February. And date of poll 23rd February. Uttar Pradesh fifth phase and first phase of Manipur. Manipur will be done in 2 phases. So on fifth phase, we will be having Uttar Pradesh fifth phase and Manipur first phase. Here the issue of notification is 1st February. Last date of notification, last nomination 8th February. Scrutiny of nominations 9th February. Last date of withdrawal of candidature 11th February. And date of poll will be 27th February 2022. Uttar Pradesh sixth phase and Manipur second phase. Here the issue of notification will be 4th February 2022. Last date of nominations 11th February 2022. Scrutiny of nominations 14th February 2022. Last date of withdrawal of candidature 16th February and date of poll 3rd March, that is Thursday. That way Manipur also completed the 6th phase. Uttar Pradesh 7th phase. Issue of notifications 10th February. Last date of nominations 17th February. Scrutiny of nominations 18th February. Last date of withdrawal of candidature is 21st February and date of poll is 7th March. So on 7th March, all polling will be over and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. Last time, 2017, the election was announced on 4th of January and the counting was on 11th and here we are announcing on 8th. So we are squeezing the time as also and the faces also. And that particular schedule will also be given to you, and how the faces of UP have been put in 7 phases will also be provided to you by the media cell here. And we have ensured that in all 7 phases of UP, there should be equitable to be distribution of the assemblies, and that particular map will be given to you by our media cell. Now we call upon all voters in these 5 states to come out and vote as enthusiastically as they have always done in the past, especially the senior citizens, persons with disability and women. Your presence at the polling stations, despite many odds and personal circumstances, is nothing short of being truly inspirational. Our fervent appeal to all stakeholders to maintain COVID-appropriate behavior at all times. I'm really thankful to my voters who have casted their vote in the earlier elections, during pandemic also, and basically in Bihar, in Assam, in Tamil Nadu, in West Bengal, and in many places, Puducherry, Kerala, in many places
the voter turnout of female was much more than the men. And I'm so grateful to all of them that in spite of their in public, the personal inconveniences, they have come and cast their vote. That is the spirit of the voter. That we want that should remain always in their mind. And this is a festival of democracy. They should come out, as I have already enumerated in my earlier paras, that the voters' safety is there, the polling booth is safe, and the polling officials are safe. Therefore, I request to all the voters to come forward and cast their votes. Similarly, I will request to all political parties and entities to mentor their party workers to adhere to COVID safety guidelines, especially during the period of campaign. Let us all remember that the safety of each one of us is our collective responsibility. It is our collective responsibility, and together we can make this happen. Wishing you all the best. Thank you very much. We'll take the questions. I'll repeat. Please begin with the name of your own name and your media organization name. We'll begin here. I'll come back to you, please. अपना नाम और मीडिया का ऑर्गेनाइजेशन नाम भी बताएं। सर नमस्कार, मोहित दुबे न्यूज़ नेशन से सर मैं हूँ। सर, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब से हिंदुस्तान में लोकतंत्र शुरू हुआ है कि पहली बार रैलियों पर बैन किया गया है। वर्चुअल रैलियां होंगी, नुक्कड़ सभाओं को भी आपने बैन लगा दिया है। तमाम जो सियासी दल हैं उल्लंघन करते हुए कहीं ना कहीं पिछली बार भी नजर आए थे। इस बार अगर वो उल्लंघन करते हैं तो क्या अगर कोई कैंडिडेट है तो उसकी आप उसको रद्द कर देंगे, उसकी कैंडिडेचर को, या क्या उनके ऊपर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है, और मॉनिटर कैसे करेंगे आप लोग? देखिए, ये मॉनिटरिंग का काम जो है बेसिकली, जो मैंने अभी कोविड गाइडलाइंस में बताया कि वहाँ का जो डीओ है, डीएम एंड सीएस, हु आर द अथॉरिटीज अंडर एसडीएमए आल्सो, दे विल हैव टू टेक ए कॉल. Our persons, our CEO, our observers will be there to ensure that this thing should be absolutely followed. And if anybody does it, we will cancel his rally. We will not allow him to have more rallies into this particular area. So if we do not allow, initially we have already, banned up to 15th, as I am telling you. We will further review because situation is very dynamic. I don't know how the situation will emerge, whether it is accelerating or it is decelerating. It is quite possible after some time it may, come down quite drastically, or it may come up drastically. So we will increase the situation. We will see the situation. We will definitely monitor, and the prime responsibility, as I've already spoken to you, that it will rest with the DM and the Chief Secretary, and we will take action against them also. And our persons are already there. Expenditure of all observers, general observers, they are there only to see this, and we will ensure that it should happen, because we are trying first time if something is being done. आगे बढ़िए तो सही, देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। थैंक यू सर। बीच के ब्लॉक से हम शुरू करें। इसी से जुड़ा सवाल है सर, चुनाव के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। अपना नाम? मेरा नाम मुर्शिद करीम है, मैं वंदे मातरम से हूँ। उसी से रिलेटेड सवाल है, आचार संहिता उल्लंघन होने के बाद चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करते, वहाँ के डीएम वगैरह करते जैसे आपने कहा, लेकिन चुनाव के बाद उन नेताओं पे कार्रवाई पूरी तरह से नहीं होते हैं, वो बच के निकल जाते हैं, आखिर क्यों? देखिए, ऐसा है, इस बार हम जहाँ जहाँ भी गए, चारों स्टेट में हम लोग गए, और हम लोगों ने इसी की समीक्षा की कि 2017 में जो भी पोल ऑफेंसेस में एफआईआर फाइल हुई थी उनका क्या हुआ. And whenever we have sent our DECs also to monitor it, and in some of the states we found that they have been taken to logical conclusions. Some fines have been given, somewhere the imprisonment have been given to those candidates also. So we have taken this stock, and we will ensure this. Now earlier it is quite possible that some monitoring might not have been done, but we will monitor this aspect. And the purpose was only to monitor during our visits to all states was this only, that we should make them aware that the electoral offences will have to be taken to logical conclusions. They cannot remain pending. So this is Shahid Abbas from Informist Media. This side on state on. Hello, sir. Sir. One by one. Hello. Shahid Abbas from. Hello. Sir, this side on your straight. On your straight. Hello. Yes. I am Shahid Abbas from Informist Media. I want to ask that it is the duty of the poll panel to ensure level playing field for all stakeholders. Now, since the Model Code of Conduct comes into effect with immediate announcement of the schedule, sir,
the union budget will be presented on 1st of February as per established practice. The President of India will address the joint session of Parliament before that, and also the economic survey of India will also be laid in the Parliament sometimes just before the budget. Now, sir, will that ensure, and you will perhaps allow that proceedings too can go on. Now, will that allow, ensure level playing field for all stakeholders? Budget is there's a yearly statement which has to be laid before the Parliament, and it has to be announced. The Election Commission will not like to interfere in the presentation of budget, because that is for the whole country, not limited to these 5 states only. And that is ultimately the summing up and the allocation of expenditure, the revenue raising measures. So how the level playing field will be disturbed, this thing? The level playing field will not be disturbed by the budget. सर नीरज पंजाब में जिस तरीके के राजनीतिक हालात हैं तो इसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या आपकी तैयारियां हैं? कहाँ? पंजाब में जिस तरीके से इस समय चैलेंज उत्पन्न हुआ है, नाम और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन वो शुरू कर चुके थे, कम से कम उन्हें खत्म कर लेने देते आप। अब आप बोलिए। सर, मैं नवनीत मिश्रा हूं, राजस्थान पत्रिका से। हाँ जी। पंजाब में जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, ऐसे में आपकी क्या तैयारियां हैं वहां पे सिक्योरिटी को लेकर के? देखिए, कमीशन ने इन सबका भी पूरा आकलन किया है, सुरक्षा का एंड लॉ एंड ऑर्डर का, और उसके लिए सफिशिएंट CFPF कंपनीज विल बी डिप्लॉयड इन ऑल द स्टेट कंसीडरिंग द पोजीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर and any other threat perceptions. सर मेरा नीरज न्यूज़ 18 इंडिया नेटवर्क 18 से। हाँ नीरज, मेरा सवाल पंजाब से जुड़ा हुआ है, लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है। आपने CFPF की बात की, उनकी तैनाती तो आमतौर पे रेगुलर वे में होती है तमाम चुनाव में, लेकिन कृषि कानूनों का केंद्र रहा पंजाब, बॉर्डर स्टेट है पाकिस्तान से। हाल में ड्रोन के जरिए आतंकी हमले भी हुए हैं। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, बेअदबी का मामला सामने आया स्वर्ण मंदिर में। तो आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग के लिए ये एक मेजर कंसर्न नहीं है पंजाब का विधानसभा चुनाव इस बार? क्योंकि पहले भी दूसरी वजहों से पंजाब में चुनाव स्थगित या थोड़े वक्त के लिए टाले गए हैं। तो कैसे देख रहा है चुनाव आयोग इस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में? नीरज, नो इलेक्शन इज द सेम, एवरी इलेक्शन इज डिफरेंट, एवरी स्टेट इज डिफरेंट। और कमीशन हर चीज को उसका आकलन करता है, लोगों से डिस्कशन करता है, जहाँ थ्रेट परसेप्शंस हैं, जहाँ पर इस तरह का फार्मर एजिटेशन है। हम लोगों ने जहाँ जहाँ भी गए हैं, सभी लोगों से इसके बारे में भी चर्चा की है कि कौन कौन सी एरिया में किस किस तरह से फार्मर एजिटेशन हुआ, कहाँ कहाँ विड्रॉल हो चुका है, कहाँ क्या सिचुएशन है। तो इन सभी तथ्यों का हम लोगों ने आकलन किया है, और पूरे कमीशन ने जो भी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनसे बात की है। हर तरह की सुरक्षा एजेंसी जो बॉर्डर पर हैं उनसे भी, और जो स्टेट में हैं उनसे भी, इन सबका पूरा संज्ञान लेकर ही इस कमीशन ने इलेक्शंस का अनाउंस किया है। आशीष, आपका सवाल। पीछे से मैम, यहाँ से ऋषिकेश बोल रहा हूँ, न्यूज़ 24 से। क्वेश्चन है सर, आई एम Sharam Rojesh फ्रॉम ISTV Imphal. For the first time, the pre-poll violence have been happening, especially in 3-4 constituency. In Hairok, one person have been killed for the first time, and many violence are happening in Manipur. And the law and order issue is also a major concern. So what are the steps you will take in case of Manipur, that the violence are taking place right now, to ensure free and fair election in Manipur? Please, sir. Yes, we had discussed this issue with the Chief Secretary and the DGP in the very recently held video conference in that state. They also apprised about these situations, and Commission is taking all steps so that such violences should not recur. We have also held discussions with the Union Home Secretary in this regard, and therefore even you see that Manipur is being given a 2 phases elections are being done, and we will ensure that these types of things should not recur. हम सहयोग करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। बस हमें केवल यह है कि रूलिंग पार्टी के लिए एक रूल और दूसरों के लिए दूसरा रूल नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म रूल होने चाहिए। सर, इस बार इलेक्शन कमीशन ने 16% पोलिंग स्टेशन बढ़ाए हैं सर पहले से। ये एक अच्छा कदम है। महिला मैन स्टेशंस भी बढ़ाए हैं, युवा वोटर्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया है, डिसेबल्ड लोग भी इलेक्टोरल बूथ को मैनेज करेंगे, ये भी बढ़ाया है। ये कुछ बिल्कुल की जाएगी, और इसीलिए एक एडवाइजरी भी जारी की जा रही है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फॉर डूज एंड डोंट्स, एंड द इलेक्टोरल ऑफेंसेस
besides the MCC will also be brought to their notice. And if anything is found that they are indulging into any type of a electoral offences which are enumerated in our RP Act, the FIR will have to be filed and that will have to be followed properly. सर गौरव बोल रहा हूँ टाइम्स नाउ भारत से। उत्तराखंड में भी चुनाव हैं और काफी टफ टेरेन और फरवरी में चुनाव होने हैं और हमने देखा कि काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। किस तरह से आप सुनिश्चित करेंगे कि वहां के लोग जो हैं वो आप किधर हैं? ये सर इधर। आप किधर हैं? हाँ, हाथ तो उठाइए। तो सर उत्तराखंड के लिए सवाल ये रहेगा कि वहां पर लोगों के लिए सुदूर इलाकों में खास करके जहां बर्फबारी होती है वहां पर वोटिंग के लिए आप कैसे भागीदारी बढ़ाएंगे, क्योंकि वहां पर हमने देखा कि मतदान प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं रह पाता इन वजहों से और अभी बहुत ज्यादा बर्फबारी कई इलाकों में देखने को मिल रही, वो कैसे आप लोग सुनिश्चित करने वाले हैं? ये भी जो चर्चा आपने की गौरव, ये भी हम लोग जब वहाँ उत्तराखंड गए थे तो जो वहाँ की चीफ इलेक्टोरल 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान हो गया है। 7 दौर में मतदान, लेकिन 7 दौर में केवल उत्तर प्रदेश, 2 दौर में मणिपुर और बाकी सभी राज्यों में एक दौर में मतदान हो जाएगा। तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 फरवरी से इसकी शुरुआत और 10 मार्च को मतगणना का दिन। पोलिंग बूथ में 16% का इजाफा किया गया है। 16% का इजाफा ये साफ संकेत है कि कोविड को लेकर इस बार। लेकिन सबसे बड़ी बात तो मौसमी है, 15 जनवरी तक कैंपेन पर कर्फ्यू। आपके साथ मुझे लगता है कुछ लोग मौजूद हैं, बातचीत कीजिए, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए अंजना, पिछली बार जिस तरह से चुनाव आयोग की भूमिका रही थी कोविड की दूसरी वेव को लेते हुए, तो काफी फटकार पड़ी थी चुनाव आयोग को। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कहा था कि जो रैली सुपर स्प्रेडर के तौर पे काम कर रही थी उन पर कार्रवाई नहीं की गई उन पार्टियों पर। उसके मद्देनजर अगर आप देखें तो जो रैली को लेके जो नियम कायदे और गाइडलाइंस हैं वो अपने आप में काफी कठोर हैं। 15 जनवरी तक तारीख साहब एक पाबंदी है रोड शो, बाइसिकल रैली और तमाम बड़ी रैलियों पर, और 8 से 8 का भी नियम रखा गया है। क्या कहेंगे, आप लोग संतुष्ट हैं कोविड के प्रोटोकॉल को लेकर? बिल्कुल, हम लोग तो शुरू से कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये स्टैंड रहा है कि जो भी चुनाव का और कोविड का जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है, उसको सख्ती से उस पर अमल किया जाए। हम लोगों ने पिछले साल देखा, आसाम में हो या बंगाल में हो और दूसरे राज्यों में जो चुनाव हुए, वहाँ प्रोटोकॉल का कोई ध्यान नहीं रखा गया और एक तरह से प्रियंका गांधी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली कर रही हैं। उन्होंने पहले ही पाबंदी लगा रखी है, पर क्या आपको लगता है ये पाबंदी काफी होगी? और दूसरी तरफ नफरत की स्पीचेस पे और हेट स्पीचेस पे सोशल मीडिया पर भी खासतौर से चुनाव आयोग ने कहा कि सख्त कार्रवाई हो। बिल्कुल, अगर चुनाव आयोग पूरे दमखम से चुनाव लड़ने वाले हैं। सर, पंजाब को एक फेज में ही किया गया है, तो लगता है कि पंजाब का चुनाव ज्यादा अहम माना जा रहा है। देखिए, 2012 और 2017 की दृष्टि से यदि हम आकलन करें तो पंजाब का चुनाव हमेशा एक ही फेज में होता है। इलेक्शन कमीशन ने इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव को जो 2012 में 9 फेजेस में हुआ था, 2017 में 8 फेजेस में हुआ था, उसे एक और फेज घटा करके 7 जो है 7 फेजेस में करने का निर्णय किया है। चुनाव करना, चुनाव की तारीखों का ऐलान करना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है। इलेक्शन कमीशन ने जो तिथियां तय की है, हम उन तिथियों पर पूरी तैयारी के साथ में चुनाव के मैदान में जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो चुनाव होगा वो डिजिटल पे ज्यादा फोकस है। रैलियों पे, नुक्कड़ों पे, साइकिल रैलियों पे, इवेंट कैंपेन डोर टू डोर करना है, उसमें भी प्रतिबंध लगाया गया कि 5 लोग से ज्यादा कैसे होगा? देखिए, जिस तरह के हालात दुनिया में और देश में हैं, कोरोना के केसेस की संख्या जिस तरह से एकदम से बढ़ी है, हम सब ने देखा है कि पिछले 8 ही दिनों में 9000 से बढ़कर के हम 1 लाख से कहीं अधिक तक पहुंच चुके हैं प्रतिदिन केसेस की दृष्टि से। तो निश्चित ही ये इलेक्शन कमीशन का निर्णय स्वागत योग्य है। लेकिन साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान करके और साथ में इन व्यवस्थाओं का ऐलान करके उन सारे लोगों की राजनीतिक चर्चाओं पर विराम लगा दिया है जो अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए अलग अलग तरह के कयास लगाते थे कि चुनाव पोस्टपोन करने के लिए सरकार काम कर रही है। सरकार चुनाव पोस्टपोन करना चाहती है, समय पर नहीं कराना चाहती है। मुझे लगता है कि उन सारे आकलनों पे, उन सारी चर्चाओं पर विराम लगाए
अब सभी पॉलिटिकल पार्टियों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, सब लोग सौहार्द को बनाए रखते हुए चुनाव में जाएं, इसकी आवश्यकता है। सर, जिस तरीके से अब डिजिटल पर फोकस रहेगा, जिस तरीके से डिजिटल की बात हो रही है, इस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो सभी राजनीतिक दलों को फंडिंग दें, क्योंकि बीजेपी से मुकाबला करना मुश्किल है। बीजेपी जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत पहले से इस्तेमाल कर रही है और हम लोग के लिए अब मुश्किल हो जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? चलिए, कम से कम अखिलेश यादव ने ये तो स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल है। भगवान उनकी राह आसान बनाए। भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा, कि दूरदृष्टि पूर्ण नेतृत्व की पार्टी है और हमने भारतीय जनता पार्टी को समय के साथ समय की कदम ताल करते हुए चलने के लिए हमारे नेतृत्व ने हमेशा तैयार रखा है। आपको लगता है कि चुनाव से कुछ देर पहले डीजीपी बदले गए हैं, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि ये सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। सरकार ने 10 ही दिन पहले, जब सरकार चन्नी साहब सरकार में आए थे, उसके बाद में वहां सरकार के मुखिया और सरकार जिस पार्टी के उसके मुखिया के बीच में एक लंबा विवाद हम सब ने देखा था और डीजीपी, एजी, इन सब को बदलने, कौन किसकी मर्जी का रहेगा, इसको लेकर के लंबी जो है बहस देश ने देखी थी। 15 ही दिन पहले एक नए डीजीपी बनाए गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से यूपीएससी के नियमों के तहत अनुकूल न होने के कारण से उनका पैनल में नाम नहीं था, इसलिए वो डीजी के पद पर नहीं बने रह सकते थे। नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पोस्टिंग की है और मैं चाहूंगा, ये अपेक्षा करूंगा कि नए डायरेक्टर जनरल, पंजाब में जिस तरह के हालात हैं, अभी हाल ही में 2 दिन पहले 5 तारीख को हमने जिस तरह की परिस्थितियां पंजाब में देखी है, कांग्रेस आलाकमान के इशारे पर जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, पंजाब की पुलिस ने जिस तरह से एक पॉलिटिकल वर्कर की तरह काम किया है, इलेक्शन कमीशन से भी मैं अपेक्षा करूंगा और पंजाब के नवनियुक्त डीजीपी से भी अपेक्षा करूंगा, पंजाब के सरकारी अमले से भी अपेक्षा करूंगा कि संवैधानिक मर्यादा के अनुरूप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के अनुसार जो है वो इंश्योर करेंगे। So the election commissioner said that they would be reviewing the status of rallies after 1 week, sir. How do you see this? They will be reviewing the situation of pandemic situation of COVID infection and the rate of increase in the infection, and thereafter after they will take a call about organizing rallies and the road shows and other political events. I welcome this initiative and step taken by the election commission. एक सवाल, पंजाब में जिस तरीके से रैली के दिन जो बसों को रोका गया, जो एक घटना हुई महत्वपूर्ण, उसके अलावा बसों को रोका गया, कई जगह पोस्टर फाड़े गए, तो क्या आप मांग करेंगे कि सेंट्रल फोर्सेस को लगाया जाए चुनाव? देखिए, ये महत्वपूर्ण घटना नहीं थी, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और देश के 135 करोड़ लोगों ने, चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा के होंगे, शायद कुछ लोगों का साहस नहीं होगा कि अपनी राजनीतिक विचारधाराओं के चलते हुए खुले में आकर के इसकी निंदा करें, लेकिन अकेले में बैठ करके शायद हर एक व्यक्ति ने इसकी निंदा की होगी। देश का प्रधानमंत्री का पद जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, उनकी सुरक्षा के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हुई, भारत का रहने वाला व्यक्ति चाहे कहीं भी दुनिया में होगा, उसका मन व्यथित और चिंतित हुआ होगा। जहां तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का विषय है, एडिकेट सेंट्रल फोर्सेस अब जो है वो डिप्लॉय की जाएंगी। और तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि जो भी गाइडलाइंस नई जारी की गई उन सबका पालन होगा। जो बड़ी बातें आपको बता दें, फिर चलेंगे कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं। 15 जनवरी तक रैली, रोड शो, सब पर पूरी तरह से रोक है। 16% बूथ्स में इजाफा किया गया है ताकि कोविड को देखते हुए ज्यादा भीड़ ना हो। इसी के साथ जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ी है। कोविड के दौर में ये चुनाव हो रहा है, तभी मंजूर हाशमी की 2 लाइनें बोली आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने कि उम्मीद हो तो तमाम, उन्होंने क्या कहा था, यकीन हो तो रास्ता निकलता है, हवा की ओट में भी चिराग जलता है। तो चिराग को जलना है।
उनको भी एहसास है कि चराग हजार लोग करीब रहेंगे एक बूथ पर अगर जाएंगे, और अगर प्रति घंटे के हिसाब से देख लीजिए तो वो अनुपात अच्छा रहता है। 100 से अंदर होते हैं वो लोग जो वोट डालने किसी भी बूथ पर जाएंगे। 10, 14, 20, 23, 27 फरवरी पहले 5 दौर का चुनाव, फिर 3 और 7 मार्च को, और 10 मार्च को काउंटिंग हो जाएगी। कुमार अभिषेक हमारे साथ इस समय है। नेताओं के लिए भी ये एक बहुत नया अनुभव होने वाला है अभिषेक, और वोटरों के लिए तो रहेगा ही, लेकिन 15 जनवरी तक हम आएंगे आपके पास, लेकिन अखिलेश यादव इस समय बोल रहे हैं इसी पर, पहले सुन लेते हैं। लोगों पे मुकदमे लगे हैं। यहां के पंचायत के चुनाव जिस समय देखे थे उस समय क्या नहीं किया सरकार ने। इनके अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता बन गए थे, जो चुनाव लड़ने वाले थे उनके पर्ची छीनने गए। पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से गरीब माताओं बहनें जो फॉर्म भरना चाहती थी उनके कपड़े फाड़ दिए गए, साड़ी छीन ली गई। कोविड के समय पर देखा है लोगों ने कि किस तरीके से उनके परिवार के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाई नहीं मिली, बिस्तर नहीं मिला। अब भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। इन्हीं तारीखों के लिए जनता इंतजार कर रही थी, किसान इंतजार कर रहा था, व्यापारी इंतजार कर रहा था, नौजवान इंतजार कर रहा था। 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। तो चुनाव के शुरू होने में लगभग सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है, लेकिन उस समय कोविड आ गया है, जिसके चलते 15 जनवरी तक सभी तरह की रैलियों पे पाबंदी लगा दी गई। खाली 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। साथ में ये भी कहा गया है कि ऑनलाइन और वर्चुअल को भी प्रोत्साहन किया जाए। 15 जनवरी तक किस तरह से देखते हैं, जो क्योंकि समाजवादी के भी कई प्लान थे रथ यात्रा। इलेक्शन कमीशन ने जो शर्तें रखी उनका शर्तों का पालन होगा, और अगर वो डोर टू डोर कम लोगों के साथ और जो नियम बने उनका पालन करते हुए प्रचार करना होगा तो प्रचार करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन को सख्ती सरकार के लिए रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार यहां पर मनमानी करेगी। पिछले चुनाव में भी मैंने देखा कि किसी भी नियम को इस सरकार ने नहीं माना। इसलिए इलेक्शन कमीशन कम से कम ये निगरानी रखे कि सरकार में बैठे लोग उनके नियमों का पालन करें। सर, एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ। आज आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये पूछा गया कि अगर वर्चुअल के लिए, जैसे अभी 15 तक है, उसके बाद भी अगर वर्चुअल के लिए कह दिया जाता है कि वर्चुअल रैलीज करनी है, तो आप किस तरह से देखते हैं? आपने ये कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन से डिमांड करेंगे फंड की, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोविड के समय पर इलेक्शन हो रहा है, और इलेक्शन कमीशन भी तमाम नियमों को और तमाम नियम बनाए हैं। मेडिकल ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट और अन्य जगह पर मेडिकल ऑफिसर भी नोडल ऑफिसर्स हैं। तो कहीं ना कहीं आशंका इस बात की भी है कि कोविड होगा या कोविड फैलेगा, और अगर वर्चुअल रैली के लिए हम जाएंगे तो उन पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास, जिन पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स के पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वर्चुअल रैली के लिए तमाम चीजें नहीं है, तो आखिरकार वो कैसे करेंगे? इसलिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को कुछ तो सहयोग करना चाहिए, चाहे वो चैनल के माध्यम से विपक्ष के लोगों को समय ज्यादा दें, फ्री में समय मिले। ये अगर इलेक्शन कमीशन चिन्हित करता है, निश्चित करता है, तो वर्चुअल रैली या वर्चुअल कार्यक्रम या पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात जनता तक पहुंचाने चाहेंगे तो ये कामयाब रहेंगे। सर, लेकिन ऐसा क्यों किया जाए? क्योंकि वर्चुअल का सहारा अगर बीजेपी भी लेगी, सारी पार्टीज लेगी, तो बाकी लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों उनको फंड की जरूरत पड़ेगी? मैं ये चाहता हूं कि सभी पार्टियों को मौका मिले, और इलेक्शन कमीशन ये कहे कि लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बराबर से देखना चाहिए। मतलब बीजेपी पहले से इसमें मजबूत है? बीजेपी के पास पहले से बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सरकार में है। इलेक्शन बॉन्ड भी सबसे ज्यादा नहीं मिलते हैं। अगर खर्चा करने में सबसे आगे कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वर्चुअल रैलीज हैं, कार्यक्रम करने में, हम लोगों ने तो देखा है कि किस तरीके से एड दिए गए हैं, सरकारी पैसे खर्च किए गए हैं, क्योंकि कल ऑबलाइज किया गया है चैनल, आज भी ऑबलाइज होंगे। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष में हैं उनको भी कहीं ना कहीं जगह मिलनी चाहिए, स्पेस मिलना चाहिए। अगर स्पेस नहीं मिलता है तो शायद वो पॉलिटिकल पार्टीज वो संसाधन नहीं जुटा पाएंगी अपना स्पेस के लिए। धन्यवाद। तो अखिलेश यादव सीधे सीधे सवाल खड़ा करते हुए वर्चुअल रैली को लेकर वो बोलते हुए कि इसमें एज मिल जाएगा जो सत्ताधारी पार्टी है, ये एक बड़ी परेशानी बन सकती है। चुनाव आयोग को लिखने की भी वो इस पर तैयारी कर रहे हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपके साथ लगता है कोई वहां मौजूद है? प्रतिक्रिया लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ, हमारे साथ स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं, जो कि जिन पर इस बार की बीजेपी की नैया पार कराने की जिम्मेदारी है। प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के। डेट्स आ गए, चुनाव आयोग की तरफ से नए गाइडलाइंस भी आ गए। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आने हैं, और अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि 10 मार्च बीजेपी साफ।
खास करके समाजवादी पार्टी ने अपना टैगलाइन दिया है और उन्होंने ट्वीट भी किया। मैं चुनाव आयोग का हृदय से स्वागत करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और 2022 का चुनाव देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए जो डबल इंजन की सरकार है आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का नीचे गरीबों को लाभ हम पहुंचाए हैं और भ्रष्टाचार मुक्त कानून का राज है, जिस प्रकार जनता की सेवा किए हैं, ये स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी को 300 प्लस यानी 300 पार हम करेंगे और पुनः सरकार बनाएंगे और गरीब की सेवा करेंगे। दम से मैं कह सकता हूं इसलिए कि पहली बार 70 सालों के बाद और सपा बसपा ने 15 सालों तक इस राज को लूटा है, कांग्रेस ने लूटा 70। और फर्क साफ है, आप उनका गुंडागर्दी देख सकते हैं और योगी सरकार का नेतृत्व कानून का राज देख सकते हैं। उनके राज्य में बिजली कभी नहीं आता था, 3 जनपदों को बिजली मिलता था, मैं 24 घंटा बिजली दिया। और मेडिकल कॉलेज देखते हैं, गरीबों का कल्याण देखते हैं। सबसे बड़ी बात है, एक गरीब को आवश्यकता क्या है? पक्का मकान, शौचालय, आयुष्मान का कार्ड, गैस का कनेक्शन, और उसको जब कष्ट में हो तो राशन। आप दावे कर रहे हैं कि आप जीतेंगे, 2022 में भी आप दोबारा जीत करके आएंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने कई बातें कही हैं। एक बात उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, चुनाव आयोग इस चीज को देखे कि 2022 के चुनाव में यह दुरुपयोग ना हो। सपा की गुंडागर्दी आपने देखा है, उनका पंचायत का चुनाव देखा है, प्रधानी जिला पंचायत सीधे लूट लिया था, इसलिए जनता ने उसको नकारा, तभी तो सत्ता के बाहर हुए। जबरदस्ती जो जीत रहे थे चुनाव, उनकी प्रधानी का छोड़ाकर दूसरे को प्रधानी का प्रमाण पत्र दे दिया, जिला पंचायत का प्रमाण पत्र दे दिया। बीजेपी में सब नहीं होता भाई, कानून का राज है। ये बताइए शासन में ये बताइए कि रैलियां जब चुनाव आयोग सख्त गाइडलाइन के साथ सामने आया है, वर्चुअल रैलियां कराना सबके लिए संभव नहीं है, बीजेपी जैसी पार्टियों के लिए संभव है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो दूसरी पार्टियां हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, आखिर जब लोग कैंपेन नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है? तमाम पार्टियां उतनी इक्विप्ड नहीं है कि वो वर्चुअल रैलियां कर सकें, लोगों से डिजिटली कनेक्ट हो सकें, तो उनके लिए अलग से सोचना चाहिए। देखिए, जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का हम सब पालन करेंगे और 100% पालन करेंगे। चुनाव आयोग के द्वारा जो गाइडलाइन दिया जाएगा उसका 100% पालन करेंगे। संगठन का मेरा ढांचा मजबूत है, चुस्त है, दुरुस्त है, और मैं बूथ स्तर पर संपर्क करेंगे, लाभार्थी से संपर्क करेंगे, लोगों से क्योंकि ये लड़ाई कामदार नामदार की है, और कामदार नामदार की लड़ाई है। जो केवल नाम करते हैं, केवल ऐसे घराने में पैदा हुए हैं और एक गरीब परिवार में जन्म लेकर लोगों की गरीबों का। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, हम आपके पास लौट रहे हैं। चुनाव के ऐलान के बाद योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने लिखा है, लोकतंत्र के महापर्व में प्रदेश के चुनाव की तिथियों की घोषणा का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। ये है योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके जो पहली प्रतिक्रिया अपनी दी है चुनावी घोषणा के बाद। हम आपको बता दें तारीखों का ऐलान, जिसमें 7 फेजेस में यूपी हो रहा है, और हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं। देखिए, इस बार पहली बार जो बड़ी बातें हैं उनमें से एक है कि इस बार पहली बार कोरोना संक्रमित भी वोट डाल पाएंगे, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हो, लेकिन इसी के साथ जो कोरोना पॉजिटिव है वो भी बैलेट वोट अपना डाल पाएंगे। तो हम उत्तर प्रदेश से शुरुआत करें तो आपको बता दें 7 चरणों में चुनाव होगा। 10 फरवरी, 14, 20, 23, 27, 3, 7 मार्च, और फिर 10 को गिनती। तो 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच 1 महीने में पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। चुनावी जो आप देखेंगे जबरदस्त रण, चाहे वो इन 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें बूथ्स में जबरदस्त इस बार इजाफा किया है, कोरोना संक्रमित इस बार वोट कर पाएंगे। फर्स्ट टाइम वोटर्स पर महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ी है। जल्दी से आपको बता दें 25 लाख 24.9 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं टोटल, और महिलाओं में 11.4 यानी लगभग 11.5 लाख
फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। अब हम उत्तराखंड के डेट्स बताएं। उत्तराखंड देखिए एक ही दौर में वहां पर मतदान होना है, यानी कि उत्तर प्रदेश में तो हम 7 दौर में मतदान देख रहे हैं, मणिपुर में 2 दौर में होगा, लेकिन उत्तराखंड में एक ही दौर में यह खत्म हो जाएगा। अब कैसे होगा वो इस हिसाब से होगा कि बूथों की संख्या, चूंकि 5 राज्यों के हिसाब से अभी चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि वहां पर उसमें बढ़ोतरी की जाएगी ताकि 1000 से अधिक मतदाताओं को आने की गुंजाइश न रहे एक पोलिंग बूथ पर, और भीड़ कहीं पर भी कभी भी इकट्ठी न हो। और इसीलिए 14 तारीख को यहां पर चुनाव है, 10 मार्च को यहां पर मतगणना है, लेकिन बाकी राज्यों की भी हम आगे बात करते हुए चलते हैं। 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, और ये अगला राज्य जो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं वो है पंजाब। पंजाब में भी चुनाव है, और पंजाब में भी एक ही दौर में आप चुनाव आपको देखने के लिए मिलेगा, और वो है 14 फरवरी। पंजाब, उत्तराखंड याद कर लीजिए, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा तीनों में एक बार में खत्म। सिर्फ मणिपुर है जहां पर 2 फेज में है, 27 और 3 तारीख को, और यहां उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से जो शुरू होगा अगले 10 से, वो लगातार चलेगा 7 मार्च तक, और फिर 10 को गिनती हो जाएगी 7 फेज में यूपी में। तो ये पंजाब, उत्तराखंड, गोवा तीनों जगहों पर 14 फरवरी को वहां पर वोटिंग होगी और 10 को काउंटिंग होगी। 14 फरवरी को वैसे भी गोवा में पार्टीज बड़ी होती हैं, लेकिन इस बार पार्टियों की पार्टी किसकी होगी वो 10 मार्च को उन्हें पता चलेगा, क्योंकि मतदान तो 14 फरवरी को वहां पर है गोवा में। अब आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश में जरूरी भी था कि 7 दौर में मतदान हो, और सिर्फ कोविड नहीं बल्कि सुरक्षा के हिसाब से भी देखना होता है, और इसीलिए मणिपुर में हम 2 दौर के चुनाव जरूर देखेंगे। तो ये 4 राज्यों को आपने देखा, और अब मणिपुर की तारीखें भी आपको बता देते हैं। वहां पर 3 तारीख को 3 मार्च को वहां पर आप वोटिंग देखेंगे, और इसके बाद जो 2 दौर में हम चुनाव की बात कर रहे हैं, देखिए इसमें मणिपुर में 2 दिनों में चुनाव होना है। 27 फरवरी भी मेरा ख्याल है, 27 और 3 तारीख है, इसको ठीक कर लीजिए। 14 फरवरी को वहां पर नहीं है वोटिंग, वहां पर 27 तारीख को है और 3 तारीख को है। लास्ट में एंड में जाकर, मतलब मार्च का महीना, फरवरी का महीना जब खत्म हो रहा होगा तो 27 फरवरी और फिर 3 मार्च, और उसके बाद 10 को यहां पर भी गिनती हो जाएगी। जो हम लोग पर बूथ की बात कर रहे थे कि 1000 के आसपास गिनती इस बार की गई है, तो इसमें एक इंटरेस्टिंग डेटा है कि उत्तराखंड में कोशिश हो रही है कि 700 भी नीचे, 699 लोग ही एक बूथ पर हों, और उत्तर प्रदेश में 862। तो कोशिश यह है कि 1000 से ज्यादा लोग एक बूथ पर नहीं हो, इकट्ठा नहीं हो ज्यादा। 16% बूथ्स में इजाफा किया गया है। 11.5% पहली टाइम महिला वोटर्स, इस बार फर्स्ट टाइम फीमेल वोटर्स है। महिला वोटों पर बहुत इस बार ध्यान दिया जा रहा है। कठिनाई तो बहुत सारी है, कठिनाई बहुत सारी है, और उसमें अगर एक गाइडलाइंस जारी की गई है, प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय। प्रेम शुक्ला जी, अगर ये गाइडलाइंस जारी की गई है कि एक तो 15 जनवरी तक कुछ नहीं, और उसके बाद डायनामिक स्थिति है, यानी देखा जाएगा क्या हो सकता है। अब ऐसे में अखिलेश यादव इस बात को लेकर जोर दे रहे हैं कि उन पार्टियों का क्या जिनके पास कोई ढांचा वैसा नहीं है, किस तरीके से ऑनलाइन प्रचार ऐसे किया जा सकेगा कि लोगों तक बात पहुंच सके। क्या यह समस्या है? क्या यह समस्या के तौर पर देख रही हैं राजनीतिक पार्टियां? क्या आप देख रहे हैं? देखिए, जो कि समाजवादी पार्टी के पास जो है किसी प्रकार का सांगठनिक ढांचा नहीं है, उनके पास सिर्फ बाहुबलियों का एक समूह है। ऐसे में उनको संकट होगा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास करोड़ों कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, इस तरह की योजनाएं हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी के पास गिनाने के लिए कर्तृत्व है, इसलिए जिसने काम किया है उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसने सिर्फ नाम ही नाम जपा है और सिर्फ अपने पिता के नाम पर और पिता के पुण्य पर जिसकी राजनीति चल रही है, वो निश्चित तौर पर संकट में होगा। तो जिसका जनता से जुड़ाव पूरे 5 वर्षों तक रहता है, उसको इस फॉर्म में भी काम करने में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। प्रभु, यहाँ तो डिजिटल प्रमुख की बात हो रही है ना, ये तो यहाँ तो डिजिटल प्रमुख की बात हो रही है। सही बात है कि आप लोगों के पास पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख सब है, ये तो डिजिटल प्रमुखों की लड़ाई होगी, व्यूज पर लड़ाई होगी कि हमारे रैली के इतने व्यूज हुए, वहां पर इतने लोग जुड़े थे। ये एक अलग किस्म की रेस है, उसमें कहा जाता है कि आपका बाहुबल चलता है। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, डिजिटल प्रमुख भी उसी के पास ज्यादा होंगे जिसके पास कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा होगी। जो कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा होगी, जिनके समर्थकों की संख्या ज्यादा होगी, जिनकी जनता में लोकप्रियता ज्यादा होगी, उसको लाइक्स भी ज्यादा मिलेंगे, उसके रिट्वीट्स भी ज्यादा मिलेंगे, उसको लगातार जो है डिजिटल पर देखने वाले व्यूज भी ज्यादा मिलेंगे। तो ये होने के लिए आपके पास एक तंत्र होना चाहिए जो 5 वर्षों तक काम करे। एक अचानक चुनाव के समय जो जाग जाएगा, बाकी 4 साढ़े 4 वर्ष जो क्वारंटाइन रहेगा, क्या उसके साथ जनता का जुड़ाव उतना गहरा संभव है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 5 वर्ष
लगातार काम करता है। हमारा नेतृत्व जो है सतत अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क रखता है और कार्यकर्ताओं को सतत जो है जनसेवा के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। काम करता है कि इसलिए इलेक्शन जो है मोड में भारतीय रहता है। जनता पार्टी के पास तंत्र खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में भी, आपको ध्यान होगा, हम डिजिटल रैलियां कर रहे थे और विरोध था, और डिजिटल रैलियां जब काम करते हैं या इलेक्शन मोड में रहते हैं, क्योंकि विपक्ष तो यही आरोप लगाता है। सिद्धार्थनाथ सिंह इस वक्त हमारे साथ मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ जी, तारीखों का ऐलान हो गया है 7 फेज में, जो शुरू होगा 10 फरवरी से 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों का। तैयारी कैसी है? और इसी के साथ वर्चुअल जो रैलीज की बात हो रही है या रोड शोज पर रोक है, उसको लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो चुनाव आयोग को लिखेंगे, ये अन्याय है छोटी पार्टियों के साथ। आप लोगों का बाहुबल चलता है डिजिटल प्लेटफॉर्म में। ये डिजिटल बाहुबल एक नया शब्द मैंने सुन लिया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम लोग की तैयारी पूरी है। हम लोगों के यहाँ सभी एक प्रकार से जो रैलियां करनी थी वो हम लोग ने करी है। और ये हमारा सौभाग्य है कि जो टाइम फ्रेम था इलेक्शन कब से अनाउंस होंगे, क्योंकि ये समय पे हो रहा है, तो उसके पहले ही हम लोग ने सब अपना कर लिया था। अब जो लोग अपने घर एसी कमरे में बैठ के ट्वीट कर रहे थे वो निकले नहीं, तो अब वो जब लेट निकले तो उनका रथ कहीं ना कहीं रुक गया है, तो उनको कठिनाइयां हो रही हैं। तो अब उस कठिनाई का समाधान भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर सकती, आप ही स्वयं कर सकते थे। अब इसमें इलेक्शन टाइम पे है ना, आप इलेक्शन कमीशन को दोष दे सकते हैं। ये एक सिद्धार्थ जी, हमेशा ये कहा जाता है कि जमीन पर उतरो तभी पता चलता है कि जमीन की हकीकत क्या है। क्या एक राजनेता के तौर पर थोड़ी मुश्किल भी आने वाली है इस समय? क्योंकि आमतौर पर जब हम रैलियों में भीड़ देखते हैं, हालांकि उस पर सवाल भी बहुत सारे जो विरोधी हैं वो उठाते हैं, लेकिन रैलियों की भीड़ को देखकर एक आकलन हो जाता है कि हवा किस ओर बह रही है। क्या वर्चुअली अगर एक नेता जुड़ने की कोशिश करेगा, मुद्दों को रखने की कोशिश करेगा, तो हम कतार में खड़े उस अंतिम व्यक्ति की भी बात यहां पर जरूर करना चाहेंगे, जिसके पास शायद एक्सेस नहीं है उस इंटरनेट का, जिन तक आप लोग बात पहुंचाना चाहेंगे? नहीं, देखिए, इसका इन्होंने जो बैन करा है इलेक्शन कमीशन ने, वो बैन करा है रैलियों को, बैन करा है उन्होंने पब्लिक बड़ी मीटिंग्स को बैन करा है। मगर आप डोर टू डोर करना चाहें एक सिस्टम के माध्यम से, इंडिविजुअली कोई जाता है तो उसको 5 वही तो कह रहा हूँ, 5 तो कह रहा हूँ, इंडिविजुअली भी बोल रहा हूँ, उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अब इसी में अभी आपका मैं सुन रहा था, जब पन्ना प्रमुख की बात हो रही थी, तो ये पन्ना प्रमुख यहीं पे काम आ जाएगा। वो पन्ना प्रमुख जिसको 40 से 50 घड़ी जाके देखने हैं, जो उसके गली पे हैं या कहाँ हैं, उसने तो उसको नाप लेना है। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग 40 लाख पन्ना प्रमुख, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे अपने क्षेत्र में जो प्रयागराज है, मेरे 8000 पन्ना प्रमुख हैं, वो बने हुए हैं, वो हमसे डिजिटली कनेक्टेड है, मैं उनके साथ वर्चुअली कभी भी जुड़ सकता हूँ। वो हमारा पूरा सिस्टम तैयार है, और मेरा ही नहीं, हर विधानसभा में तैयार है। वो जब नीचे उतरते हैं, उनको 50 घर जाना है, 2 लड़के जाएंगे, वो कुछ भी करें, वो एक प्रचार प्रसार का पूरा माध्यम है, तो ये भी एक कनेक्ट है। तो जब कनेक्ट करना है तो एक व्यक्तिगत जो कनेक्ट होगा वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो मुझे नहीं दिखता कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें दिक्कत आएगी। हाँ, जिन पार्टी को दिक्कत हो रही है, जिन नेताओं को दिक्कत हो रही है, जो लिखना चाह रहे हैं चुनाव आयोग को, तो सोचना चाहिए था कि टेक्नोलॉजी आपने क्यों नहीं अपनाई, और आपने टेक्नोलॉजी अपनाई नहीं। आप वो जो पैसे थे वो इकट्ठा करके दीवारों के पीछे गाड़ रखे थे, शायद उनको यहां पे इस्तेमाल करते तो आपकी पार्टी को आज लाभ होता। चलिए ठीक है, हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं जो लगातार इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आपके पास संजय जी आते हुए जल्दी से एक एक करके जो तीनों पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ जी उनके भी कुछ सवाल रहेंगे, आपके लिए दिलचस्प होगा ये पूरा इंटरैक्शन। संजय जी, आपके पास आते हुए 7 फेजेस में 1 महीने में, और ये जो रैलियों पर बैन है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे सुबह से, अब तो सच्चाई हो गई है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अब इसी तरीके से अपना करना पड़ेगा। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखेंगे, लेकिन कोविड की महामारी का वो परेशानी है जिस पर चुनाव आयोग हाथ खड़े कर देगा कि मानना ही पड़ेगा। नहीं अंजना जी, देखिए, रैलियों पे पूरी तरह से बैन तो 15 जनवरी तक है, उसके बाद बैन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उसके बाद रिव्यू करेंगे। लेकिन जिस बात की चर्चा हम सुबह भी कर रहे थे कि अगर आप सिर्फ वर्चुअल रैली करेंगे तो बड़ी पार्टियों को इसका फायदा होता है, छोटी पार्टियों को इसका नुकसान होता है, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और इस समय इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। तो इसकी दिक्कत तो रहेगी छोटी पार्टियों को, और बड़ी पार्टियों को इसका फायदा होगा।
बड़ी पार्टियों को जब वर्चुअल रैली नहीं होती थी, जब एक्चुअल रैली होती थी, तो उसमें भी फायदा होता है, उसमें भी रिसोर्सेज की जरूरत होती है और रिसोर्सेज भी बड़ी पार्टियों के पास ही ज्यादा है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो एक तरह से अनइवन ग्राउंड है, वो थोड़ा अनइवन और बन जाएगा। जो घोषणाएं हुई हैं, जो जिस तरीके से अब आने वाले दिनों में, क्योंकि असामान्य परिस्थितियों में असामान्य कदम वो तो उठा लिए गए हैं, लेकिन अब जो राजनीतिक पार्टियां अपनी आशंकाएं जाहिर कर रही हैं, उस पर आपका क्या टेक है? और इसी में एक सवाल मैं जोड़ रही हूं सर, वो बजट वाला मुद्दा एक पत्रकार ने वहां उठाया था कि बजट होगा, उसमें अगर कुछ फ्रीबीज अनाउंस होते हैं, कुछ होता है, तो उससे मौजूदा जो डिस्पेंसेशन है सरकार है उसको फायदा होगा। उस पर क्या कहना है? प्रभु चवले जी, आप सुन पा रहे हैं? मेरे क्या मैंने समझा आप उनसे पूछ रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, बजट का जी पहली बार नहीं है कि बजट आ रहा है इलेक्शन के बीच में। पिछली बार ही बजट आया था, सिर्फ जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है वोट रेफरेंडम दिया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन का जो स्टैंड की बजट का कोई स्टेट इलेक्शन से कोई कनेक्शन नहीं होता, वो स्टैंड बिल्कुल ठीक है। उसमें कई फायदे दे सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, वो लोग देना चाहे तो दे सकते हैं। तो ये सारे चुनाव के अंदर एक चीज आपने नोट नहीं की है, जो हाईलाइट होने वाली बात है कि पहली बार क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड हर पार्टी अपनी वेबसाइट पे डालेगी नॉमिनेशन से पहले। ये एक बहुत बड़ी घोषणा की है चुनाव आयोग ने। मेरे नॉलेज में ये बात नहीं थी पहले, ये था कि एफिडेविट में लोग फाइल करते थे, और ये भी लिखना पड़ेगा कि आपने इनको क्यों चुना। ये एक बड़ा सुधार किया है इलेक्शन कमीशन ने, जिसका यूपी से संबंध ज्यादा है, क्योंकि यूपी के अंदर देखेंगे 70-80% कैंडिडेट्स हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल कैंडिडेट्स रिकॉर्ड हैं, और उनको उसके अंदर रखना पड़ेगा। और जहां तक कि प्रचार की बात है, अनियमन तो होगा, जैसे संजय कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि बड़ी पार्टियों को फायदा होगा इसके अंदर, कि उनके पास साधन भी हैं, पैसा भी है, प्रचार करने के लोग भी हैं, जुड़े हुए भी लोग हैं। परंतु क्योंकि अलायंस का जमाना है, जैसे अखिलेश जी शिकायत कर रहे थे, अखिलेश जी अपने प्लेटफॉर्म पे, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने यूज की है, वो अपने छोटी पार्टियों को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचार करा सकते हैं। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सर एक सेकंड जरा, ये जो ट्रेंड है उस पर मैं लौट रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी सबसे एक रिएक्शन। संजय, क्या ये तय हो गया पिछली बार की तरफ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल की तरफ जो चुनाव का, इस पर क्या कुछ स्पष्टता अभी तक आई है, किस तरफ से शुरू होगा रीजन वाइज? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले जाटलैंड में इलेक्शन होंगे, पहले चरण में जाटलैंड में चुनाव होंगे, और उसके बाद आखिर में गाजीपुर की तरफ चुनाव होंगे। और ऐसे में चुनाव आयोग ने कहा है कि सीटों का बराबर वर्गीकरण किया गया है, ताकि सबसे पहले ये सहारनपुर को छोड़ दें तो बाकी पूरा जाटलैंड पहले चरण में होगा, फिर धीरे 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 वो पीछे की ओर, पूरब की ओर बढ़ते हैं, और सबसे आखिर में गाजीपुर वगैरह का इलाका होगा, यानी पूरब का पूरा इलाका होगा। जैसा कि चावला जी बता रहे थे, तो उसमें इलेक्शन कमीशन का अपना KYC है, नो योर कैंडिडेट, और ये पहले से ही ये नियम बना हुआ है। और जिसमें लेकिन इस बार ये सवाल उठा कि इसमें सख्ती क्या होगी, तो इनका कहना है कि 3 बार, जो पहले से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये तय किया गया, जिसमें 3 बार पार्टियों को अपनी वेबसाइट के होम पेज पर अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले जितने कैंडिडेट्स हैं उनकी सारी डिटेल यानी जन्म कुंडली डालनी पड़ेगी, और ये बताना पड़ेगा कि आखिर बाकी इनका ही चुनाव कैंडिडेशन के लिए क्यों किया, ताकि जनता को अधिकार है लोकल मीडिया में, टीवी चैनल्स पे, अपनी वेबसाइट पे, अखबारों में विज्ञापन देकर ये बताना पड़ेगा कि आखिर हमने ये कैंडिडेट क्यों चुना है। बिहार में और बंगाल में है तो बहुत दिलचस्प, लेकिन नियमों का क्रियान्वयन कैसे होता है वो देखना होता है कि आप विनेबिलिटी को एक रीजन नहीं डाल सकते हैं, यानी कि जीत सकता है ये उम्मीदवार, इसीलिए हमने इसे टिकट दिया, ये नहीं हो सकता। ये बहुत दिलचस्प है। सतीश प्रकाश जी हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी की ओर से जुड़े हैं। सतीश जी, बीएसपी किस तरीके से देख रही है ये जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिस तरह से ये चुनाव होने वाले हैं? नहीं, देखिए श्वेता जी, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव एक महापर्व के रूप में बहुजन समाज पार्टी देखती है। तमाम सुविधाएं हैं। महामारी के दौर में जिस तरह का इलेक्शन कमीशन ने जो बातें रखी है, हम उनकी बातों से सहमत, लेकिन कुछ चीजें उसके ऊपर सवाल जरूर उठाएंगे कि तमाम जो दल है, जो जिनके पास संसाधन कम है, उनको कहीं ना कहीं इस डिजिटल को जोड़ना या टेक्नोलॉजी ज्यादा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इसमें टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं मुद्दा ये आएगा कि कुछ ऐसे दल हैं जिनके मतदाता टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है, वो वर्चुअली प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे दलों के सामने कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होगा। मेरे हिसाब से चुनाव आयोग को तमाम दलों के लिए तमाम संचार के जो माध्यम है उनके ऊपर उनको समय प्रोवाइड करना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए।